Hello my dear children, welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So children, today we are going to start chapter number 8, that is conditional control statement. Let's get started. This chapter is completely based on QBasic, which you have learned in the previous class. Now in this chapter we will know about conditional control statements in QBasic. So let's start now. BASIC was designed by Professor John Keminey and Thomas Curtis in 1964. It was basically designed for training the beginners in programming. Later on, in 1985, Bill Gates and Paul Allen developed QBasic that was intended as a replacement for GWBasic. The QBasic language is a compiler-based high-level language that uses Windows environment. Further, to improve upon the previous version of QBasic 4.5, the new version QB64 was released on 24th April 2013. In the previous class, you have learned about the statements such as let, print and input. These statements have a specific use and structure. Now, in this lesson, you will study about conditional control statements in QB64 such as if then, go to, if then else, etc. Okay, so before proceeding with the conditional control statements, let us have a brief review of the constants, variables and the statements that you have learned in the previous class. Okay, firstly we will start with constant and variables. What are constants and what are variables? Firstly, constants. Constants are the values that do not change during the execution of program. जो values fix होती हैं, जो change नहीं होती, they are known as constant. There are two type of constants, numeric and character constant. Numeric is again divided into integer and real constants. Integer जिनमें points नहीं होते, they can be negative and positive without any functional point. Okay, so 12 to 34 minus 786, these are numeric constant. And real constants are the numbers with fractional part, means points जिनमें होते हैं, like 75.5, 46.25, etc. Now we have character constants. So again character constants are divided into two types, single character constant and string multi-character constant. Firstly, single character constant. These contains only a single character enclosed in double quotes. Like you can see on the screen, A, D, F, single characters. These are known as single character constant. Next is string constant. It is sequence of characters enclosed with double quotes like KIPS, welcome to basic programming, etc. जैसे आप देख पा रहे हैं किप्स पूरा वर्ड है एंड वेलकम टू बेसिक प्रोग्रामिंग, दिस इज कंप्लीट सेंटेंस. तो इस तरह के जब ज़्यादा लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, दे आर रिटन इन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट. Now next thing is variable. Variable क्या होते हैं? Variable is the name location in the memory of computer that stores data temporarily. A variable has a unique name, a type and a size that is used to identify it in a program. It can hold one data at a time and can accept different values during the execution of the program. सो वेरिएबल्स क्या हैं? कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन को आप एक नेम देते हैं, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं. कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको हमने एक नेम दे दिया, उसको वेरिएबल बोल दिया और उसके अंदर हम हर तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ओके, कॉन्स्टेंट्स हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल. So what is numeric variable? Which can store only numbers like integer, floating, decimal points. ये सारे हमारे जो स्टोर होंगे वो न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर होंगे. इसको हम एक अल्फ़ाबेट से स्टोर करेंगे एंड न्यूमेरिक वेरिएबल्स में आप ये सिम्बल्स नहीं डाल सकते. लाइक आप देख पा रहे हैं परसेंटेज का साइन, क्वेश्चन मार्क, दीज सिम्बल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर न्यूमेरिक वेरिएबल. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल इज a इक्वल टू 5. ए क्या है? यहाँ एक वेरिएबल है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन को हमने नेम दे दिया एंड 5 इज द इंटीजर वैल्यू विच इज स्टोर्ड इनसाइड द ए के अंदर हमने 5 डाल दिया. ओके, सो ए इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग वेरिएबल. A string variable contains values, symbols और text within double quotes. ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो उसको स्ट्रिंग वेरिएबल बोलते हैं. जो हमने स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे वो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर होते हैं और इनको हम डॉलर साइन लगा के ही लिखते हैं. लाइक $a इक्वल्स टू किप्स. तो $a क्या है? एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट को स्टोर कर रहा है.
Now here we will have a review of the statements we have studied in the previous class. First is RAM statement. RAM statement is used to write a comment in the program that does not get executed. Okay, so RAM statement में आप जो भी लिखते हैं वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो केवल कमेंट्स लिखने के लिए होता है. हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम का नेम उसमें लिख सकते हैं. नेक्स्ट आता है प्रिंट स्टेटमेंट विच इज यूज टू डिस्प्ले नंबर्स, टेस्ट और मैसेजेस ऑन द आउटपुट स्क्रीन. प्रिंट स्टेटमेंट में आप जो भी चीज लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है. नेक्स्ट इज सीएलएस स्टेटमेंट जो कि आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करती है. लेट स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन और गिव अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. वेरिएबल में कोई वैल्यू आपको डालनी है तो आप लेट स्टेटमेंट का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज इनपुट स्टेटमेंट विच इज यूज टू एक्सेप्ट अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल. यूजर से कोई इनपुट लेना है तो आप इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे. नाउ वी विल सी द कंट्रोल स्टेटमेंट्स. So in a program the statements are generally executed in sequential manner. ठीक है. However at times the user may need to change this order of execution either by repeating or skipping the execution of a few statements. So generally प्रोग्राम में क्या होता है, सारी स्टेटमेंट्स जिस ऑर्डर में लिखी होती हैं उसी में वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं, बट कई बार हम इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, स्किप भी करना चाहते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को. सो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं इनको हम कंट्रोल स्टेटमेंट से परफॉर्म कर सकते हैं. सो ड्यू टू दिस कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग डिसीजंस इन रन टाइम दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोग्रामिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. देयर आर वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन QB64 लाइक गो टू, इफ देन एल्स, etc to perform conditional checks and repeated tasks. Okay, so under the control statements firstly we will learn about goto statement. A goto statement is referred to as unconditional transfer control. It is used to transfer the program control from one statement to another in a program. ठीक है. Syntax क्या है इसका? Go to and then instruction. So go to statement से हम अपने प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसको कहीं और भेज सकते हैं. ठीक है. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग प्रोग्राम के बीच में कहीं पे भी लिख सकते हैं गो टू एंड देन स्टार्ट. तो इससे क्या होगा, हमारा जो लेबल स्टार्ट जहाँ पे बना हुआ है वहीं पे डायरेक्ट हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. तो इन द प्रोग्राम यू कैन सी हेयर वी आर शोइंग अ प्रोग्राम. हेयर वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम a इक्वल्स टू 1 एंड देन स्टार्ट. स्टार्ट क्या है, यहाँ पे स्टार्ट के बाद कॉलन लगे हैं, इट मीन्स ये एक लेबल बन गया है. देन b इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड a, प्रिंट b, a इक्वल्स टू a+1 एंड देन गो टू स्टार्ट. गो टू स्टार्ट से क्या होगा, वापस से हमारा जहाँ पे गो टू स्टार्ट लिखा है तो उससे दोबारा से स्टार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो इस तरह से आउटपुट क्या हो जाएगा, बार बार वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी. तो 1, 4, 9, 16 आता जाएगा, बार बार प्रिंट होता जाएगा और ये इनफाइनाइट लूप यहाँ पे बन गया है. सो हेयर व्हेन गो टू स्टेटमेंट एनकाउंटर्स द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू डिजायर्ड लाइन टू सेट अप अ लूप. लूप बन गया है जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है और जो कभी खत्म नहीं हो रहा है. सो जब हम गोटो के साथ कोई कंडीशन नहीं देते हैं कि वो कब खत्म हो तो वो एक इनफाइनाइट लूप को क्रिएट कर देता है जिसका कभी एग्जिट नहीं होता. ओके, सो वी हैव अ नोट पॉइंट हियर. एन इनफाइनाइट लूप इज टर्मिनेटेड बाय प्रेसिंग CTRL प्लस पॉज ब्रेक की. अगर आपका इनफाइनाइट लूप शुरू हो गया है, वो बंद ही नहीं हो रहा, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, इस की को यूज़ करके. सो हम लोग अपनी डेली लाइफ में एक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं. लाइक हमारा प्लान है कि हमें मूवी पे जाना है, तो अगर टिकट अवेलेबल होंगे तभी हम जा पाएंगे. कंडीशन क्या है, इफ टिकट्स आर अवेलेबल एंड प्लान ऑफ एक्शन इज सी द मूवी. And if tickets are not available, then what we will do? We will have food in a restaurant. Okay, so like in our daily lives, computer also decides about the actions depending upon the validity or non-validity of a condition. Every decision involves a choice between the yes and no result. Once the condition is satisfied, the execution stops. So infinite loop से बचने के लिए हमें यहाँ एक कंडीशन लगानी होगी कि जब वो कंडीशन ट्रू हो तो लूप रुक जाए, वहीं पे वो चीज़ रुक जाए, एग्जीक्यूशन रुक जाए. So the goto statement can also be used along with if-then statement that allows the execution of program for a specific number of times. ठीक है. So यहाँ पे हम देखेंगे अब if-then statement को कैसे यूज करना है. यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे to compare two numbers. सो रैम इज प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर. 2 नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे और उसमें हम ग्रेटर नंबर को फाइंड करेंगे. इनपुट में हमने लिखा एंटर 2 नंबर, यूजर से हमने कहा एंटर 2 नंबर. उसके बाद जो फर्स्ट नंबर वो एंटर करेगा वो N1 में आएगा एंड सेकेंड नंबर विल कम इन N2. अब हम चेक करेंगे इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 देन वी हैव टू प्रिंट ग्रेटर नंबर इज, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, N1. N1 को प्रिंट कर देगा, ग्रेटर नंबर इज एज इट इज लिखेगा, N1 को प्रिंट कर देगा. एंड इफ N1 इज लेस देन N2 देन प्रिंट ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर दिस इन डबल कोट्स में एज इट इज लिख कर आएगा और N2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी.
और अगर दोनों नंबर बराबर हैं, इफ n1 एंड n2 आर इक्वल, देन व्हाट इट विल प्रिंट, बोथ नंबर्स आर इक्वल एंड देन एंड। तो इस तरह से हमने एक प्रोग्राम बनाया दो नंबर को कंपेयर करने के लिए यूजिंग द इफ स्टेटमेंट। ओके, सो इफ स्टेटमेंट को यूज करके आप एक कंडीशन चेक कर सकते हैं, और अगर वो कंडीशन मीट होती है, इफ के बाद में आपने जो कंडीशन लिखी है अगर वो ट्रू होती है, तो उसके बाद देन में आपने जो लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। Okay, so this way we can use if then statement to make the decisions based on the condition. So children, this much for today. Thank you. Bye bye.